Good afternoon, everyone. Am I audible? कैसे हैं सब लोग? How are you all doing, guys? Thank you for showing up on a Sunday afternoon. Amazing. So, how many people we have today? 102. बाकी सब पुणे करे क्या? एक ते चार झोपतात? Yeah, do you know this? It's a famous saying that goes, पुणेकर एक ते चार झोपतात. They sleep 1 to 4. So they will not do anything during that time. Resting time है भाई, कोई disturb ना करे. हाँ, अकोला वाले हैं यहाँ पे. Mumbai are also here. Great, great, great. So nice to have a variety of people. Sangli, Amravati, Nashik, Aurangabad, Dhulekar, Satara. Who's from Satara? Prasad Shinde. You're from Satara. Okay, okay. Satara में कहाँ से हो? नागपुर. Oh, many people from Aurangabad. I don't know. Aurangabad बहुत सारे हैं. Solapur. Good, good, good. Gadchiroli, Naldurg. Delhi. Oh my God. Again, Aurangabad there. Bangalore, Karad. पुणे. ओके ओके, एक पुणे का भी है. समवन इज नॉट स्लीपिंग. ऑलराइट, बस इंडिया घूम के आ गई मैं. थैंक यू. या वेलकम टू क्लाउड एज. ठीक है. सो कल हमने क्या किया था, आज हम क्या करने वाले हैं? एनी गेसेस फॉर टुडेज टॉपिक? व्हाट इज इट गोना बी? कुछ तो रह गया था कल जो करना था. H3 क्या है? Hadoop 3. यस 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 यस. Hadoop 3 का डिप्लॉयमेंट देखना था हमने आज, और ये भी देखना था कि Hadoop 3 अलग क्यों है. Why are we calling it as Hadoop 3? है ना? Yeah, Aftab, I don't think you. I mean, I will. I have a plan already set up, and thank you for the suggestion, but I would like to follow the plan. Okay. Hadoop 2. Hadoop 2 is your deployment of CDH 5.1.6. वो सेशन हुआ है क्या आपका? CM का डिप्लॉयमेंट देखा है आपने? अमेजिंग. तो वो डेडिकेटेड सेशन हुआ है आपका अराउंड 1.5-2 hours का, जहाँ पे आपको सीएम का इंटायर डिप्लॉयमेंट बताया गया था. तो यू रियली थिंक वी नीड टू गो एंड डू दैट वंस अगेन? आपको प्रोडक्शन लेवल दिखाया गया था, आई गेस, कि हदूप 2 किस तरह से डिप्लॉय होता है. उसके एडमिन टास्क हो चुके हैं आपके. सो आई थिंक हदूप 3 नहीं हुआ है आपका डिप्लॉय, राइट? एंटरप्राइज ग्रेड हुआ है. इट्स वेरी क्लोज टू प्रोडक्शन ग्रेड. तो आपका H3 नहीं हुआ है. H3 नहीं हुआ है. तो H3 यानी Hadoop 3 मैं बताऊंगी आज. So Hadoop 1 we did yesterday. Hadoop 2 का आपका एक सेशन हो गया था अच्छा सा, and Hadoop 3 हम आज करेंगे. So we will be covering everything. Thank you, Sohail, for asking. Thank you so much. My health is good. I'm better. Fever है viral सा, तो it takes around 2 to 3 days. Yeah. So let's start. Let me share the screen, and first I will walk you through the major differences that Hadoop 3 brings along. Thank you, thank you. Yeah, I'm a tough woman. So I would walk you through with major differences that Hadoop 3 brings along, and why was there a need for this upgraded version, and how it is different from 2 and 1. So we will see that, and then we will see the deployment. Okay, guys? Sounds good? Amazing. Yeah, let's go. Okay. So, सबसे पहले हम लोग देख इसको 3 हिस्सों में आपको ये है. 3 things that you need to keep in mind, okay? The first thing is the changes that were at HDFS level. Okay? Then there was some changes at MapReduce level. इसके बाद changes थे YARN level पे. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि हम कौन से 3 changes देखेंगे मेजरली? Okay, so to begin with, let us start with HDFS. HDFS में क्या क्या चेंज आया? ठीक है, तो अभी जब HDFS की हम बात करते हैं, तो सबसे मेजर और एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी चीज वो लोग जो लेकर आए, that was something called erasure coding. How many of you all are aware about this? Erasure coding.
ठीक है, erasure coding. Yes. So this is a very major concept that comes with Hadoop 3 and इसको कैसे एक्सप्लेन करना है मैं बताती हूँ, एक मिनट, गिव मी अ मिनट. ओके, हम क्या करते हैं, एक और पेंट ओपन कर देते हैं. तो मेरा जो स्क्रिबलिंग विब्लिंग है उसको यहाँ करती हूँ मैं. ओके, ठीक है, ठीक है. तो इरेज कोडिंग, आपको पता था कि वर्जन्स 1.x यानी जो हडूप 1 और उसके वर्जन्स थे 1.1, 1.1.1.1, 1.2.2, 1.2.3 एटसेट्रा एटसेट्रा, that came with something called replication. That came with something called replications, है ना. अब replications क्या होता है? replications मतलब हम एक डेटा, अभी ये मशीन है, ये डेटा है, आई गेस यू ऑल नो दिस, ये डेटा को हम कॉपी करेंगे और उसके रेप्लिकेशंस और 2-3 मशीनों पे बना के रखेंगे. ठीक है, अभी आई वांट यू ऑल टू यूज योर कॉमन सेंस, आई वांट यू टू यूज योर कॉमन सेंस कि ये 3 मशीनों पे, दिस इज योर मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3, 3 मशीन्स पे जब हमने ये डेटा कॉपी किया है, तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इट. अभी तक आपको हमने ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट. नाउ आई वांट यू ऑल टू टेल मी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इट. वेरी गुड, इसको बहुत सारा स्टोरेज लगा. somebody said storage, very nice. और क्या? yes, that came along with a lot of cost. What else? Somebody said latency, it required extra time. Okay, what else? Yes, bandwidth, a very important factor here. Who said that? Satish Kumar, very nice. So it came along with bandwidth also. तो ये जो चीजें थी, ये हमारा प्रॉब्लम एरिया था. अब प्रॉब्लम एरिया को सॉल्व करने के लिए देयर केम Hadoop 2. Hadoop 2 आया उसके बाद, है ना. Hold on, न्यू ले लेते हैं, ठीक है. अब Hadoop 2 में हमने क्या किया था, Hadoop 2 में हमने इस चीज को ओवरकम किया था, ये प्रॉब्लम को ओवरकम किया था. सेम थिंग रिमेन्ड इन Hadoop 2, है ना, कि रेप्लिकेशन ही था. अब क्या हुआ, what we used to do is there was something called warm data. We still do this. There is something called cold data. Warm data, cold data. What is your warm data? जो बहुत ज्यादा यूज में है. It is always being used. ट्रांजैक्शनल डेटा है कि डेटा इज इनफ्लो चालू रह रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल, वार्म डेटा का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं ये दे देती हूँ कि आपको जो करंट प्लेयर है, नेम अ करंट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम हु इज लाइक बहुत डिमांड में है. विराट कोहली, एवरीवन सेज दैट. हार्दिक पांड्या, राइट. एंड कोल्ड डेटा में टेक कपिल देव. इज कपिल देव प्लेइंग एनीमोर? No. But is Virat playing matches? Yes. So Virat के records हमको ज्यादा frequently fetch करने पड़ते हैं. Whenever he is out to play, we need his records. Do we need Kapil Dev's record every time? No. So this is the best example that you can remember कि hot data क्या है and cold data क्या है. So हमारा जो warm data था, इसको हम replicate करते थे. इसका replication हम कभी कभी 5 भी रखते थे कि भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको हमको नहीं खोना है. कोल्ड डेटा को ठीक है, आप रेप्लिकेशन 2 रखो या उसका रेप्लिकेशन 3 रखो और उसको आप क्या करो, उसको यूज करो, स्टोर करके रख दो, जब चाहिए तब आप उसको यूज करो. इस तरह से ये चल रहा था. अब आया हमारा वर्जन 3, देयर केम Hadoop 3. तो इसका प्रॉब्लम जो था, जो स्पेस, कॉस्ट, लेटेंसी, ये सारी चीजें जो हमारी वेस्ट हो रही थी, इसका सोल्यूशन किस तरह से लेके आया. इसने क्या किया कि भाई आपके 5 रेप्लिकेशंस हैं, हम क्या करेंगे, 5 रेप्लिकेशंस को कुछ भी तकलीफ नहीं देंगे.
इसका 3 कॉपीज हम मेंटेन करेंगे, लेकिन इसकी जो 2 कॉपी है, इसकी जो 2 कॉपीज है, अब ये जो है आई एम टॉकिंग अबाउट कोल्ड डेटा, ओके। वार्म डेटा के तो हम वी विल स्टिल स्टिक टू रेप्लिकेशन इन प्रोडक्शन, वी विल नॉट टेक रिस्क देयर, भले ही स्टोरेज में जाए पैसा, भले ही कॉस्ट में जाए पैसा, भले ही टाइम लगे, वॉट एवर इट इज, बैंडविड्थ लगे, वी आर रेडी टू बेयर द कॉस्ट, वहां पे हमको प्रॉब्लम नहीं करना है। लेकिन Afan, please pay attention to what I'm doing here. I'm trying to explain something. You're teaching me shortcuts. Okay, thank you anyways. Control plus SC. Okay, okay. तो कोल्ड डेटा के 5 रेप्लिकेशंस हमने रखे हैं। 5 रेप्लिकेशंस जब हम रखे तो हमने क्या किया कि 3 रेप्लिकेशन में रखे, और ये जो 2 है इनको हमने यूज किया इरेजर कोडिंग। तो हमने जो रेप्लिकेशन में स्पेस, बैंडविड्थ, टाइम लगता है उसको हमने कम किया। तो अब आप बोलोगे मैम व्हाट एग्जैक्टली इज योर इरेजर कोडिंग, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? तो इरेजर कोडिंग इज, आई विल टेल यू, होल्ड ऑन, नको, लेट मी जस्ट डू न्यू। So this is your one block of data, okay? This is your second block of data. This is B1, this is B2, and then you have something called a parity block. Parity. I hope it is readable. There is something called parity block. Guys, is my voice clear enough? Is my voice breaking or something? How is the voice quality today? Clear, right? Is there any noise or anything? All good? Okay. Sorry. I am getting some noise. ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक 2, ये somehow करप्ट हो गया, ये चला गया। तो हम क्या करेंगे, we will use B1 plus we will use this parity block, and we will be able to regenerate this B2. Basically, parity block comes with an algorithm, okay? The word parity means sequence. So yes, RAID का जो concept है, redundancy array वाला, वही यहाँ पे यूज होता है कि हम क्या कर रहे हैं, डेटा लॉस को रीजेनरेट कर रहे हैं, हम डेटा लॉस को रीजेनरेट कर रहे हैं। तो हमारा जो ब्लॉक 1 है उसको हम पैरिटी ब्लॉक के साथ यूज करके हम B2 बना रहे हैं। तो जब भी कहीं डेटा करप्शन या डेटा लॉस आ जाता है, वी शुड बी एबल टू यूज पैरिटी ब्लॉक्स एंड रीजनरेटर। तो हम बोलेंगे भाई कुछ हो भी जाता है तो वी आर देयर टू हैंडल, लेकिन कुछ हो भी जाता है, ये रिस्क हम हमारे वार्म डेटा के साथ ले सकते हैं क्या? हम नहीं ले सकते। तो दैट्स व्हाई व्हाट वी डू, we stick to replications for warm data in production most of the time, and then cold data के लिए हम eraser coding use करेंगे। So is eraser coding clear enough? ये समझ में आ गया? यस। अभी सेकंड चेंज क्या था इसमें? देयर वाज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चेंज जिसको हम कहेंगे बैलेंसर। नाउ दिस बैलेंसर improved the efficiency of your job like anything, मतलब बहुत ही ज्यादा काम की चीज थी ये। इसको हम कहते थे इंट्रा डेटा नोड बैलेंसर। सो इंट्रा डेटा नोड बैलेंसर, okay, ये कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर। सो व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? तो इंट्रा डेटा नोड बैलेंसर में फॉर एग्जांपल यू हैव अ one data node, okay? This data node has some data. Then you have a second data node. This data node also has some data. And now I decide that I want to introduce another data node. मुझे एक और data node introduce करना है यहाँ पे, right? So now what will we do? We will run the HDFS balancer, and ये D3 इंट्रोड्यूस करके हम हमारा जो एग्जिस्टिंग HDFS का बैलेंसर है वो हम रन करेंगे एज एन एडमिन, और ये जो डेटा है ये बैलेंस हो जाएगा तीनों नोड्स पे। नाउ फॉर एग्जांपल आई हैव अ 60 GB ऑफ डेटा, सो 20 यहाँ जाएगा, 20 यहाँ जाएगा एंड 20 यहाँ जाएगा। ये समझ में आया कि हमारा HDFS बैलेंसर सो फार किस तरह काम करता था? Yes. So we have to, as admins, we run this balancer, and this is how the data gets distributed. Now this concept is called inter data node balancing. Mind the
term. It is inter data node balancing, means within the data node we are balancing. Lekin I want to teach you intra data node balancing, you know, like what exactly is intra data node. So this is a data node. इसमें 20 GB का आपका डेटा है. हो सकता है यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 नहीं, नॉट, इट कैन नॉट बी 15, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है. So is it equally distributed? No. So what we will do when we run intra data node balancer, when we run intra data node balancer, this data will be equally distributed like 6.33, 6.33 and 6.33 and 3333, whatever it is. So यहाँ पे क्या हो गया कि ये सिचुएशन को पहले किसी ने एड्रेस नहीं किया था, Hadoop 3 ने ये सिचुएशन को एड्रेस किया. So this improved the efficiency of your job very well to a very good extent actually. So job efficiency improve हो गई Hadoop 3 में. So this also this problem also got addressed. Okay. अभी इसके बाद आता है next one. What is the next one? इसके बाद आता है एक बहुत important concept again, जिसको हम कहेंगे, give me a minute, what is the next concept? I told you erasure coding. I told you about intra-data node balancer. What am I forgetting? Hold on. There is something that I am forgetting. Hold on. Let me recall. Thanks to my bad memory, I keep forgetting so many things. Yes, there was आया याद मुझे, high availability. Yes, because this is not a very explanatory concept. I might have forgotten it. So high availability. High availability के लिए हम क्या करते थे पहले? हम whenever you have one name node, तो इसका पहले प्रॉब्लम क्या था? Hadoop 1 में you had a secondary name node, right? तो what was the problem in Hadoop 1? Come on, someone walk me through. Hadoop 1 में high availability था क्या? Yes, single point of failure. आपका जो name node था, that was your single point of failure. Now what happened in Hadoop 2? क्या हुआ Hadoop 2 में? No, checkpointing was not there in Hadoop 2. HA, very good, Zilas, very good. So something called HA came into picture in Hadoop 2. HA में क्या होता था? Who will be able to tell me? HA में ये होता था कि हमारा एक नेम नोड है, हमारे 3 जर्नल नोड्स हैं और ये हमारा स्टैंड बाय नेम नोड है. एक एक्टिव है और एक हमारा स्टैंड बाय है. यहाँ पे ये राइट करेगा कोरम जर्नल नोड्स पे, और ये एक टाइम पे एक ही जो आपका नोड होता है, एक्टिव नोड जो होता है, दैट इज अलाउड टू राइट एंड द अदर वन इज रीडिंग. सो दिस इज डूइंग रीड राइट ऑपरेशंस एंड दिस अदर वन इज डूइंग read operations simultaneously. Yes, we need the zookeeper, or you can say ZKFC, for something called lock, to lock इस चीज को लॉक कर दो कि भाई एक टाइम पे एक ही नेम नोड लिखे. ऑल्सो फॉर इलेक्शंस कि कौन लीडर रहेगा, also for epoch number. So we all know this concept, and if you don't know, they will be explained. Right now understand one thing कि यहाँ पे आपका active name node जो है वो लिख रहा है और standby जो है वो read कर रहा है. So at any point of time, if the active goes down, these journal nodes, they have a record of the metadata of your name node. तो ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी नेम स्टैंड बाय नेम नोड जो है वो आपका जो पूरा मेटा डेटा कॉपी करके दिस विल बिकम योर एक्टिव नेम नोड. नाउ it will become your active name node and it will be given a different epoch number and it becomes the leader now. फिर हम टाइम लगा के इसको अप एंड रनिंग करेंगे और फिर इफ यू वांट यू कैन जस्ट स्विच इट. तब तक इसको एक्टिव रहने देंगे जब तक कि वो डाउन ना हो जाए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? समझ आ रहा है? ओके गुड. तो फिर अब दोबारा से हम क्या देखते हैं कि क्या, तो ये तो बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट था. दिस वाज वेरी नाइस. व्हाट एक्स्ट्रा वाज एडेड इन Hadoop 3? Hadoop 3 में हमने क्या किया, हमने एक नेम नोड रखा जो हमारा एक्टिव नेम नोड है. ओके,
Yes, you're right. So till the time the name node is down and the standby is working, we are actually not in HA. तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया, हमारा जो एक्टिव नोड नेम नोड है, इसको हमने एक स्टैंड बाय नेम नोड रखा और इसको हमने एक और स्टैंड बाय नेम नोड रखा. एंड व्हाट वी डिड कि हमने जो हमारे कोरम जनरल नोड्स हैं जो पहले 3 थे उसको हमने 5 कर दिए. 1 2 3 4 5. So in Hadoop 3 you are always in HA because you are going to have multiple backup for your active name node. So there is no possibility of losing the service at any point of time. So इसके अलावा there was another change कि यहाँ के port numbers change हो गए आपके. So the port numbers that were changed were I guess 9870 हो गया था. 9870 आपका जो 50070 है, hold on, आपका जो 50070 है that became your 9870. आपका जो 50090 है that is your secondary name node that became 9868. So अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछ रहा है कि what are you using and you say you're using Hadoop 3, so what is the port number for your HTTP name node? You'll say 9870. They'll say okay for your SNN you will say 9868. फिर आपको पूछेंगे RM का क्या है तो ये सेम ही है 8088. और आपको पूछेंगे कि डेटा नोड का क्या है तो आप बोलोगे 9864. ओके, रिमेंबर दीज पोर्ट नंबर्स गाइस. 50070 से हो गया 9870. ये क्यों हुआ? ये हुआ क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम आ रहे थे तो उसको एड्रेस करने के लिए ये चीज हुई है. There were certain problems that were arising for certain applications, and to overcome those problems, they changed the port numbers in Hadoop 3. So your port numbers for Hadoop 2 would not be same as Hadoop 3. Remember this. ये interview में पूछते हैं just to check that you're actually working or not. If you're showing some experience, they will be asking. I wrote there 8088. Assam Muhammad, are you not paying attention here? Here it is. I have written here. Okay. Next. Now, these were the changes that happened at your HDFS level. Okay, HDFS level. अब हम देखेंगे कि guys और एक important चीज, like when you say there is something called 3.0.1 or 3.1.1, what does this mean? Any guesses? What does this mean? Yes. So this 3, this 3 here. So this will stand for major changes that were made. बहुत major changes अगर हुए हैं, so the version that 3 will from 2 to from 2 it will become 3 if there are major changes. अब ये जो 0 है, ये second वाला आता है, that it means कि जो existing features है उसमें हमने कुछ new features add किए हैं. जो existing features है, तो अगर 0 है मतलब पहले वाले के जो features है वो same ही रहे. ठीक है. और ये लास्ट वाला जो है दैट मींस पैचेस, जो पैचिंग किया है हमने, कितने पैचेस आए हैं उसमें. ठीक है. सो रिमेंबर दिस मींस योर मेजर चेंजेस. नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि मैप रिड्यूस के लेवल पे क्या चेंजेस आए. So map reduce के लेवल पे there was only one major change. Okay, I hope HDFS लेवल के changes आपको समझ में आ गए. Everyone is attentive today or you all are dozing off? Good afternoon everyone, wake up. थैंक यू, थैंक यू. तो मैप रिड्यूस के लेवल पे कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं कि जस्ट अ मिनट, हाँ होल्ड ऑन. हाँ, वेयर वाज आई. मैप रिड्यूस के लेवल पे मतलब हमारा जो टास्क लेवल है, टास्क, देयर आर जॉब इज डिवाइडेड इनटू वेरियस टास्क्स. तो टास्क्स का जो आउटपुट होता है वो लोकली हम क्या कर सकते थे, हम उसको लोकली थोड़ा सा स्टोर करते हैं. तो देखो अभी फॉर एग्जांपल ये आपके जॉब्स है, इसका टास्क है, तो इसका जो आउटपुट आता है ये मैपर को जाता है.
है ना। और ये मैपर का जो आउटपुट आएगा वो आप समथिंग कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टोरेज में स्टोर होता है, ये हमको पता था। और फिर यहाँ से आपका रिड्यूसर आके डेटा उठाता है, शफल एंड सॉर्ट होता है ना। Now I'm not deep diving into this MapReduce architecture because I just showed it to you yesterday. So I'm not going to deep dive there. You very well know what I'm talking about. So now जो इंटरमीडिएट लेवल पे आपका डेटा स्टोर होता था, वहां पे हमने क्या किया कि हमने जो आउटपुट्स आने लगे मैपर के, उसको हमने लोकली स्टोर करना, सर्टेन आउटपुट्स को लोकली स्टोर करना शुरू किया। तो हम जब हमने उसको लोकली स्टोर करना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो 30 to 40% बढ़ गया मैप रिड्यूस का। इट बिकेम मोर एफिशिएंट, 30 to 40% वो बढ़ गया। तो इट डज नॉट मीन कि हमारे डिस्क कंप्यूटेशंस नहीं हो रहे, दैट इज हैपनिंग। डोंट ट्राई टू थिंक कि मैप रिड्यूस अभी कुछ स्पार्क की तरह हो गया है, इन मेमोरी प्रोसेसिंग वगैरह कर रहा है, नहीं। बट एक नेटिव तरह से स्टोर होने लगा हमारा मैपर का आउटपुट। तो द आउटपुट दैट यू गेट फ्रॉम द मैपर, इट स्टार्टेड बीइंग सेव्ड नेटिवली यानी वहां की वहां लोकली वो स्टोर हो रहा है। तो जब शफल एंड सॉर्ट के लिए रिड्यूसर आता है और उसको वो आउटपुट पिक करना होता है, तो उधर के वही का वही वो पिक करेगा। इट डज नॉट नीड टू एवरी टाइम गो टू योर लोकल फाइल सिस्टम इन चेक इंटरमीडिएट डेटा स्टोरेज जहाँ पे पहले स्टोर होता था। तो उसका जो टाइम है, ट्रैवल टाइम, वो बच गया। सो दैट्स व्हाई योर जॉब्स दे वर ऑप्टिमाइज्ड. This is also called something called native optimization. Okay, now I am taking a session, my job is to explain things, and when you ask me, I will explain and give you an explanation of say 15 minutes. आपको इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा कि okay, so what were the changes made to MapReduce when you come to Hadoop 3, your answer would be, sir, they were using native optimization techniques. Okay, that's it. Do not sit and elaborate there and try to be a trainer to them. Is that clear? All you have to say is, in short, अभी हम आपको पता होना चाहिए. You are interviewing me. All they did was there was native optimization. Then if the person says, oh really? Would you like to explain what native optimization is? Then you go and tell them all this. पूरा फिर रामायण महाभारत, that entire story you're going to explain. But तब तक just say native optimization. How native optimization helped you? It helped in improving the efficiency of the job by 30 to 40%. Don't say 30%, don't say 40%, around 30 to 40%. That's how you answer your interviews, guys. Keep it short, keep it brief. If they ask you to explain, because the moment you keep it short, they're going to definitely ask you, अच्छा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, native optimization, just explain what it is. And then you get another 10 minutes to explain. फिर तो इतना explain करो, एक चीज दो बार explain करो. What will that do? That will consume the time of the interview. And once it consumes the time of the interview, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले हैं ना, जो आपको नहीं आते, उसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक टाइम अलॉटेड फॉर यू गाइस. ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू दिन दिन भर चलेगा. तो 35-40 मिनट्स अलॉटेड होते हैं, उसमें लकीली 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, शॉर्ट में आंसर दो. लेट देम आस्क यू अबाउट इट. वंस दे आस्क यू अबाउट इट, इतना लंबा आंसर दो ऐसे, मतलब वो कभी कॉन्सेप्ट भूले ही ना. एंड देन यू आर डन. दे विल से, ओ माय गॉड, इंप्रेसिव. ठीक है. सो दैट वाज एट मैप रिड्यूस लेवल. मैप रिड्यूस लेवल पे हम आके क्या लिखेंगे? नेटिव ऑप्टिमाइजेशन. ओके, ठीक है. अब क्या बचा? अब बचे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट यान जी. यान के लेवल पे क्या चेंजेस है ये देखते हैं. मैप रिड्यूस लेवल पे इतना ही, ठीक है. अब वी विल गो टू सी व्हाट यान डिड, व्हाट चेंजेस दे ट्राई टू ब्रिंग अबाउट इन यान. यान में क्या चेंजेस थे? तो यान, आपको पता है कि यान इज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट evolutionary thing that was introduced in Hadoop 2, right? यान के आने से हमारा रिसोर्स, ग्लोबल रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है इसको, कि रिसोर्स मैनेजमेंट बिकेम एक्सट्रीमली एफिशिएंट, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो गया. नाउ व्हाट वर द शेड्यूलर्स दैट आई टॉट यू यस्टरडे? कैन एनीवन एक्सप्लेन और जस्ट पुट इट अप इन द चैट? Oh my god, did I only teach fair and capacity?
FIFO also, yes. I told you, and we discussed about FIFO, we discussed about FAIR, we discussed about capacity. FIFO क्या था? FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा पहले वो प्रोसेस होगा, वही पहले जो पहले सबमिट हुआ उसको पहले रिसोर्सेस मिलेंगे। फिर हम आ गए हडूप 2 में, जहाँ पे कैपेसिटी था। कैपेसिटी में क्या था कि यार्न क्यूज का कॉन्सेप्ट आ गया था। यस्टरडे आई हैड एक्सप्लेन्ड कि हर किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा। एवरी डिपार्टमेंट वाज अलॉटेड विद दीज क्यूज, यार्न क्यूज, और फिर उनको कुछ ना कुछ वहां पे दिया गया। हर किसी को समथिंग वाज गिवन टू एवरीवन, सम कोटा वाज अलॉटेड टू एवरी डिपार्टमेंट। दैट वाज योर कैपेसिटी शेड्यूलर। देन केम योर फेयर शेड्यूलर, सबको सब कुछ मिलेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। There I gave you the example of property distribution among sons and daughters. It has to be equal. It is equally distributed. So ये हमने schedulers देखे। आज हम कुछ दो important concepts देखने वाले हैं, और एक नए टाइप का शेड्यूलर आया था। So जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत इजी जाएगा, और जिनकी नई भी अच्छी है उनको भी एक्सप्लेन करने के बाद समझ में आ जाएगा। Opportunistic containers. Opportunistic containers. ना आपको पता है कि opportunistic इंसान कौन होता है, किसको opportunistic कहते हैं? Any guesses? नहीं, स्वार्थी नहीं होता है। स्वार्थी will be selfish. To grab opportunity, that is a good thing. To grab an opportunity, you should never let go of an opportunity. Always grab an opportunity that comes your way. फायदा उठाने वाला, प्रशांत. Bang on. Opportunistic is someone who is waiting कि कब उसको मौके पे चौका मारने का चांस मिले। मोइन, वी आर ऑन द सेम पेज। जो वेट कर रहा है कि कब चांस मिले और मैं इस सिचुएशन का फायदा उठाऊं। बहुत देर से वो बंदा हमेशा खुद को इतना पोर्ट्रे कर रहा है, मैनेजर की नजर में वही आता है, हर बार उसी को चांस मिलता है। एक बार बंदे तू एब्सेंट रहे, मैं तुझको बताता हूँ कि किस तरह इंप्रेस किया जाता है लोगों को। एंड दैट पर्सन इज एब्सेंट समडे। बस मिल गई अपॉर्चुनिटी आपको, आपने बता दिया मैनेजर को कि हम भी किसी से कम नहीं, लाओ थ्रो एरर्स एट मी एंड आई एम गोना डू एवरीथिंग फॉर यू। So that is being opportunistic, right? Like someone is not there, कोई बीमार है, किसी का वक्त खराब है, किसी का सिचुएशन खराब है, उसका फायदा उठाने वाले होते हैं opportunistic। तो आप बोलेंगे मैम हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यान में opportunistic containers है। How they work? Now there was something called guaranteed containers, or you can just call them GC, okay, guaranteed containers। तो ये जो है, ये हाई प्रायोरिटी जॉब्स के लिए रन होते हैं, हाई प्रायोरिटी जॉब्स। अब क्या होता है कि एट टाइम्स देयर इज एन प्रीएम्पशन टाइम फॉर देम। प्रीएम्पशन, और इसको कैसे बताऊं मैं? प्रीएम्पशन मतलब एंटिसिपेटरी टाइम। एंटिसिपेटरी कि अब आपको पता है कि गारंटेड कंटेनर लॉन्च होने वाला है। there is some few seconds in between, like for example, you submit job number 1, you submit job number 2, you submit job number 3 and you submit job number 4। आपके जितने भी रिसोर्सेज है 1, 2 एंड 3 में यूज हो गए। सारे जो आपके कंटेनर्स थे वो यूज हो गए। आपके पास 3 कंटेनर्स थे, तीनों भी जॉब्स ने एक एक कंटेनर ले लिया। तीनों भी जॉब्स ने एक एक कंटेनर ले लिया। नाउ व्हाट विल हैपन टू द फोर्थ वन? अब तक क्या होता था? अब तक ये होता था कि आपको एरर आता था कि नॉट इनफ रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, यू डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज। अब तक हमको ये एरर आता था। लेकिन अब क्या होने लगा? अब हमारे पास आ गए अपॉर्चुनिस्टिक कंटेनर। वो बोलेगा वो लोग अपना काम कर रहे हैं क्यू में, कंटेनर तो खाली नहीं है, आप एक काम करो, आपके सारे एप्लीकेशंस जो है मेरे पास दे के रखो। बॉस जैसे ही खाली होते 2 मिनट का टाइम मिलेगा, मैं सिग्नेचर लेके आऊंगा। यू हैव दिस प्यून इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, यू माइट हैव सीन कि बहुत सारे टीचर्स है प्रिंसिपल के साथ गपशप लड़ा रहे हैं एंड दे आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड द प्रिंसिपल इज बिजी एंड यू वेट एंड स्टैंड देयर। अब आपको तो कोई चांस देने वाला नहीं, आप लो प्रायोरिटी हो, आप एक स्टूडेंट हो, और प्रिंसिपल से गपशप लड़ा रहे हैं आपके टीचर्स। तो पहली टीचर आती है मैथ्स वाली, शी विल डिस्कस समथिंग important, then science teacher, she'll discuss something important, then comes history teacher, और आपके क्लासेस मिस होते जा रहे हैं। आपको आपके लीव एप्लीकेशन पे प्रिंसिपल की सिग्नेचर चाहिए, काम तो 2 सेकंड का ही है। तो आपके प्यून अंकल क्या बोलेंगे? बेटा क्लासेस मिस मत करो, मेरे पास दे दो आपका एप्लीकेशन, आप चले जाओ, यू गो एंड अटेंड योर क्लासेस, आई विल टेक केयर ऑफ इट।
जैसे ही मुझे मौका मिलेगा कि एक टीचर बाहर गई, दूसरी टीचर आ रही है, वो 2 सेकंड के बीच में मैं सिग्नेचर लेके आपको दे दूंगा। एंड यू आर सो प्लीज, यू आर लाइक सर आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छे हो। सो वो जो प्यून अंकल है ना, वो है हमारे अपॉर्चुनिस्टिक कंटेनर। समझ रहे हो? तो ये क्या करेगा, ये आपकी जॉब को लेके रख देगा अपने पास। और जैसे ही आपकी जीसी का प्रीएम्प्टेड टाइम उसको पता चला, एंटिसिपेट करेगा वो कि अभी जीसी आने वाला है, उतने टाइम में फट से वो कंटेनर यूज करके वो जॉब कुछ हद तक रन कर लेगा। फिर जैसे ही जीसी आता है, वो पैसिव मोड में चला जाएगा, जीसी काम करेगा। फिर जीसी एक कंटेनर खाली हो गया, अगला वाला लॉन्च होने से पहले वो स्पेस यूज करके वो तुम्हारा जॉब रन करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो ऑप्टिमम लेवल पे हो रहा है। योर रिसोर्सेज आर बीइंग मैनेज्ड एफिशिएंटली, योर रिसोर्सेज आर बीइंग मैनेज्ड एफिशिएंटली। थोड़ा भी टाइम हम वेस्ट नहीं कर रहे। और मेरे लिए क्या इजी हो गया कि आई कैन जस्ट सबमिट द जॉब एंड आई कैन मूव, आई कैन जस्ट सबमिट इट एंड गो अवे। और मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अपॉर्चुनिस्टिक कंटेनर्स है इसका ध्यान रखने के लिए। सो देयर इज नो आइडल टाइम, देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। एंड you at times you may just not get a container every time. So if that happens, you can actually not to worry, because your job, it can be handled by the opportunistic containers. Understood? Was the concept very confusing or something? Understood no, या concept was not confusing? किस चीज के लिए no? It's clear, right? Thank you, Dinesh. Amazing, amazing. Thank you very much, thank you very much. Sure, I am happy. ठीक है, तो इसमें फायदा क्या हुआ? इसमें क्या फायदा हुआ? What was the best part about this? टाइम सेव किया हमने। ओके, दैट आई अंडरस्टूड। एंटिसिपेट करना मतलब पहले से अंदाजा लगाना किसी चीज का। नो, आई टेल यू इसका फायदा क्या हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि हमको कोई भी जॉब दोबारा दोबारा घड़ी 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 सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। एक जॉब एक बार सबमिट कर दो और जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना? इट विल बी टेकन केयर बाय अपॉर्चुनिस्टिक कंटेनर्स, सो यू डू नॉट नीड टू रीसबमिट योर जॉब्स अगेन एंड अगेन. So that was one major plus point of these containers. Okay, clear? Where are you getting these words from, Nikhil? Scalability, availability, all this. Have you read a lot of books or something? Amazing. Yeah, very good. Yeah, but the word scalability, that will be used when you are able to scale things. यहाँ पे optimum utilization of resources आएगा. Guaranteed container is something that your high priority jobs have to get the resources, you know, they will get the resources. Nikhil, coming to your scalability कैसे आई वो अभी हम देखेंगे. Now we will be seeing the next feature of your yarn. तो yarn में एक और चीज आई. Have you all heard about job history server? Yes. So what is a job history server? Somebody please put it up in the chat. I'm waiting. Job के logs, right? Job के logs होते हैं, records होते हैं. What type of jobs? What type of jobs I'm talking? Completed, incompleted? No. No. What are the two types of jobs? You have read jobs and you have write jobs. Okay? आपके पास होते हैं read jobs and आपके पास होते हैं write jobs. तो Yarn Timeline Server 2 was something that was Yarn Timeline Server version 2, something that came along with Hadoop 3. तो इसमें क्या था, ये आपके जॉब हिस्ट्री सर्वर का ही नया वर्जन है. ठीक है. तो इसमें हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारा जो मैप रिड्यूस है, इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट अलग हो गया और इसमें प्रोसेसिंग अलग हो गया. वी स्प्लिट इट, है ना? उसी तरह से हमने क्या किया कि आपका जो जॉब हिस्ट्री सर्वर है, ये दो टाइप के जॉब्स हैंडल करता था. दैट इज योर रीड जॉब्स एंड योर राइट जॉब्स. ठीक है. तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया.
आपके रीड जॉब्स अलग हैंडल होने लगे और आपके राइट जॉब्स अलग हैंडल होने लगे. So all your read jobs would be written differently and your write jobs would be written differently. Shuffling kiya humne. We separated them. The read jobs and write jobs were separated, and that was an additional feature of your Hadoop 3. So again, the efficiency of your jobs improved like anything. सो बहुत ही ज्यादा लेस टाइम में आपके जॉब्स रन होते हैं एंड द टाइम कंज्यूम्ड इज रियली लेस. यू हैव लेस SLA एंड यू आर सॉर्टेड. So far clear? Quickly give me a thumbs up. I love to see those thumbs up coming up. You can give me a thumbs down if you're not clear, no problem. But if you're clear, please give me a thumbs up. अमेजिंग. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सो हमारा जो ऑपर्चुनिस्टिक कंटेनर का कॉन्सेप्ट था, वहां पे मैं एक चीज बताना आपको भूल गई हूँ कि वहां पे जो शेड्यूलर यूज होता है ना, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेड्यूलर. ओके. So if someone asks you what type of scheduler is used along with your opportunistic containers, please do tell them ki distributed scheduler. Okay. Okay. Coming to the next point. I hope ये तो मेजर सारे अभी कवर हो गए. इतने ही मेजर चेंजेस थे Hadoop 3 में. कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस ये लेके आया नहीं था. इतने ही थे. लेकिन अभी जो इसके साथ एक और चीज बतानी थी आपको कि जावा जो है वो 8 वाले वर्जन से ऊपर ही लगेगा आपको. प्रेफरेबली 8 कंपैटिबल है जावा 8. ओके. एंड बहुत सारे जो शेल स्क्रिप्ट्स हम यूज होते थे, there were many shell script that actually come along by default with Hadoop. बहुत सारे. So there were a lot of shell scripts that were added in Hadoop 3. पहले से बने बनाए शेल स्क्रिप्ट्स ऐड हो गए. तो एडमिन लेवल पे हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम बढ़ गया कि हमको मतलब दे वर बेसिकली टू मेक आवर लाइफ इजी ओनली. शेल स्क्रिप्ट्स दे मेक आवर लाइफ इजी. लेकिन हमको बहुत बने बनाए शेल स्क्रिप्ट्स एक्स्ट्रा मिले. तो इन दैट केस क्या हो गया, दे वर री रिटन एक्चुअली. जो पहले के थे वो री रिटन हुए. एंड हमको वही देखना पड़ रहा है, अभी पढ़ना पड़ रहा है. यू गेट टू लाइक गेट योरसेल्फ familiar. ठीक है. Because there were many bugs in earlier versions, and those bugs had not been addressed since very long. So to address those long standing bugs, they wrote a lot of shell scripts and they came in. There were also certain new commands, one of which is dist.ch. Now this command, dist.cp आपने देखा होगा, there is also called dist.ch. Now this command is used to change the ownership of the files, guys. So this command would be used to change the ownership of the files. Okay. So yeah, that was all about it. And I want you to take a quick break here. And yeah, यान तो मैंने आपको बताया, containers, opportunistic containers, general containers, डिस्ट्रीब्यूटेड शेड्यूलर बताया मैंने आपको, टाइमलाइन सर्वर के बारे में बताया. इसके साथ मैंने आपको कमांड्स जो चेंज हुए वो बताए, शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में बताया. या डन, वी आर गुड टू गो. सो आई वांट यू टू टेक अ क्विक 5-minute ब्रेक and meanwhile answer one question. Okay, meanwhile answer one question. I will put a timer here. After that we are going to see deployment of Hadoop 3, right? So I want you to answer this question, that if a milkman, he is Arab. If there is a milkman, but he is an Arab, what would you call him? After 5 minutes break, I want the answer to this. Not exactly 5 minutes. Let's make it lesser. Let's make it a 3-minute break. Hello, am I audible? बहुत सारे ड्राइवर्स है जो ट्रैफिक ऑफेंस नहीं करते, आपके कंप्यूटर्स में भी होंगे बहुत सारे. Okay, okay. Just give me a minute, guys. Here. I'm sharing the screen. 18.04 का हम एक इंस्टेंस लेते हैं. And hold on, मैं screen share कर रही हूँ. Share screen. Are you all able to see my screen? अरे milkshake सही था यार. Come on, was it even a riddle? Tausif felt very badly. Don't use my surname. Well, Tausif, I was using mine. Yeah. So, अच्छा Google किया है क्या सबने? Come on यार, कभी-कभी you should like just use your brain. That's the reason why I give the riddle. Don't be a spoil sport. Changing the security groups here. और ट्रैफिक माय आईपी कर देते हैं हम लोग फटाक से. एंड थोड़ा सा स्टोरेज चेंज कर लेते हैं. लेट्स ट्राई लॉन्चिंग द इंस्टेंस.
अब एक स्क्रिप्ट रेडी है, आपको मिल जाएगी आपके एलएमएस पे ये सेशन के बाद। हम क्या कर रहे हैं आज, we will be deploying Hadoop 3 on a single node and we will see if all the daemons come up and running. No, we don't need spot instance right now because we are not doing it on a fully distributed cluster. The reason why is that you will be having another dedicated session where आपको CDP बताया जाएगा अच्छे से। तो एक डिटेल में आपको अपग्रेड सिखाएंगे, आपको CDP बताया जाएगा। So there again, another 2-3 hours you will be learning about how to sort of, install Hadoop 3, how we use it. So I'll just change the appearance for you guys. तो हमारी पट्टी आ गई है। Hold on. No, right now we are using Ubuntu. You can also do it on CentOS. It should not be a problem. Like you guys are very well familiar with a single node cluster. There are certain changes and that's it. Okay. I hope you all can see this script now. It won't matter. Actually, it won't matter, guys. You can take T2 micro also. Okay. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? We are updating. ये चल रहा है. Have you all started studying and preparing well? Are you practicing? Are you wasting your night sleeps? Very good. Sohail says he's been practicing every day. We'll just do apt-get install SSH. Keep listening to sessions. Like you are going on a drive, लगा के रखो session कहीं पे आराम से. We are doing SSH localhost, keygen, authorized keys, ये सब आपको पता है. तो जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, आप क्या करो कि ये सेशन लगा के रख दो wirelessly. Yes, you can deploy everything on a single node, no problem. Wirelessly अपने sessions को सुनते रहो. Even if you're walking around, you're going for a walk, rather than listening to songs, what you can do is you can just go on listening to the sessions. For some time, you can actually like compromise or sacrifice on this one thing. कि आप गाने वाने सुनने से it's better that you sort of listen to the sessions. मैंने wget से Hadoop 3 लेके आई हूँ Apache से, archive से, and we are downloading it. You like my sessions, Imtiaz? Thank you very much. See, more than interesting, they should be informative. It should add to your knowledge. That's what is the entire focus. Yeah, 3.1.2. Just pick any stable version. You can try another version of it also. And there it is. अब देख रहे हो अपना आ गया है tarball यहाँ पे. Theory studies, you need to like sort of make your own notes for theories, guys. Use a lot of diagrams, use a lot of mind maps. बहुत scribbling करो. The one thing that I personally follow is that I cut these notebook papers, जो पुराने papers होते हैं ना, old notebook से या printers के जो papers होते हैं, I just cut it and I stitch it and make small notebooks for myself. They are like a palm size, and wherever I'm going, I just have that pocket diary with me, my little pocket diary with me, and I use a very fine like Pentonic pens and all, or cello grippers. And I write my notes in very fine writing, छोटा 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 छोटा. Even at times it's difficult for me to see also. उससे क्या होता है कि बड़े concentration से लिखा जाता है, and you can carry that little thing anywhere you go. So whenever you get time, just read, just keep on reading, just go through. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा रट लो, just go through, आंखों के नीचे से जाने दो उसको, just एक पेज पलटते रहो. That will sort of create certain impressions in your subconscious mind. तो जब आपको याद करना है ना, तो आपको बराबर से ये फटाक से डायलॉग्स और ये फटाक से डायग्राम्स जो आपने बनाए हैं वो याद आ जाते हैं. इट बिकम्स वेरी इजी टू रिकलेक्ट. So this is a very nice thing that helps. And there are 3 types of learners basically. I always tell this, that one type, the first type is an audio learner, जो सुन सुन के सीखता है. The second one is a visual learner, like kind of learner I am.
I cannot only listen to someone's blah blah and understand. I need to have a picture in front of me. I need to have a blackboard or a notebook in front of me. And the other one, the third one is a kinetic learner. सेशन सुनेगा कुछ नहीं समझेगा, डायग्राम्स देखेगा फिर भी कुछ नहीं समझेगा, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन यूज करके जब एक्चुअली डिप्लॉय करेगा तो दैट इज अ काइनेटिक लर्नर, तब समझ में आएगा. सो आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस लर्निंग इन ऑल थ्री वेज. ऑडियो भी सुनो, विजुअल भी देखो और काइनेटिक लर्नर्स भी बनो. चलो, मूविंग फॉरवर्ड, वी आर इंस्टॉलिंग जावा. कुछ करना नहीं है यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है. आपको कॉपी पेस्ट करना है, स्क्रिप्ट मिलती है, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज वे मोर इम्पोर्टेंट. या हेडलेस जेडीके. अंटार वी डिड ऑलरेडी. दिख रहा है. नेक्स्ट, सीडी करो, हडूप का एनवायरनमेंट सेट करेंगे, उसको बताएंगे कि जावा कहाँ पे है. एलएस करके आपको बता दिया, सब कुछ है यहाँ पे. you're just exporting this path java underscore home and you're उसको बता रहे कि हमने जावा कहाँ रखा है. ठीक है, अभी ये सब तो आपको पता है. core site.xml कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉपर्टीज पेस्ट कर दो. करना क्या है, सिर्फ प्रॉपर्टी को उठाना है. fs.defaults उसको बताना है कि आपका नेम नोड कहाँ लोकेटेड है. नेम नोड का लोकेशन उसको बता रहे हैं हम. नेक्स्ट, hdfs site.xml replication factor set होता है. now since I'm using a single machine, just a minute, coming to configuration, copying properties, और चले जाओ और पेस्ट कर लो. there you go. कंट्रोल ओ कंट्रोल एक्स, मैपरेड site.xml पे आते हैं अभी हम. yes आफ्ताब, don't worry, you'll get the script. और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या कर रहे हैं, मैप देखो अब यहाँ पे ये चेंज है, मैप रिड्यूस डॉट फ्रेमवर्क डॉट नेम का और यान. ठीक है, यहाँ पे हमने इसका जो वेरिएबल है हडूप अंडरस्कोर मैपरेड अंडरस्कोर होम उसको बता दिया और प्रॉपर्टीज पेस्ट करके कंट्रोल ओ कंट्रोल एक्स. नेक्स्ट, अब एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारा यान. यान site.xml मैप रिड्यूस की प्रॉपर्टीज सेट कर दी, कॉन्फ़िगर कर दे. अब यान को कॉन्फ़िगर करते हैं. आ जाओ यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन के बीच में प्रॉपर्टी को कॉपी करो, कॉपी एंड पेस्ट. और यहाँ पे सारे वेरिएबल्स को हमने डाल दिया है. जावा अंडरस्कोर होम, हडूप अंडरस्कोर कॉमन अंडरस्कोर होम, हडूप अंडरस्कोर hdfs अंडरस्कोर होम, एटसेट्रा एटसेट्रा. कंट्रोल ओ कंट्रोल एक्स. what are variables? They are storing the path to everything. cd किया, अब हम आ गए हैं वापस. cd करके हडूप 3.1.2 में हम जाते हैं एंड अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम नेम नोड को फॉर्मेट करेंगे. दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप, रिमेंबर दैट. ये cd अगर आप नहीं करोगे तो आपका नेम नोड फॉर्मेट नहीं होगा. ये स्क्रिप्ट मैंने खुद बैठ के बनाई है, मेरा नेम नोड फॉर्मेट ही नहीं हो रहा था. so this was a mistake that I was making. I don't think you have Hadoop 3 script on Elements. अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं सारे डीमंस को. एसबिन में रखा है हमने नेम नोड, डेटा नोड, yarn.sh से yarn को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे रिसोर्स मैनेजर स्टार्ट हो जाएगा, नोड मैनेजर स्टार्ट हो जाएंगे. और आपको जीपीएस करके बता देती हूँ कि सारी डीमंस हमारे अप एंड रनिंग है या नहीं. एक मिनट, हाँ होल्ड ऑन, कंट्रोल एल करती हूँ ताकि सबको दिखाई दे प्रॉपरली.
देयर यू गो, जेपीएस किया हमने, और जेपीएस में नेम नोड, रिसोर्स मैनेजर, सेकेंडरी नेम नोड, डेटा नोड, नोड मैनेजर, सब कुछ आ गया। ओके होल्ड ऑन, 2 मिनट। हाँ, अभी आपको वेब यूआई भी बता देते हैं। So what did I do? I did curl if config.co, और मैंने public IP देखा. Generally, guys, you won't get this option to go to your console and pick the IP from there. Most of the time, you will have this option कि आप curl if config करो और वहां से ही IP उठाओ. IP colon, क्या बताया था मैंने आपको पोर्ट नंबर? No, it means Abdul Hamid was not at all attentive. I told you Hadoop 3 में आके हमारे जो पोर्ट नंबर्स है वो चेंज हो जाते हैं. ओके, देयर यू गो. तो ये आ गया आपका पेज. अभी हम आपको रिसोर्स मैनेजर भी ओपन करके बता देते हैं. व्हाट इज द पोर्ट नंबर? 8088, आरएम का वेब यूआई. ठीक है. सो आपको अब आई होप कि ये सेशन के बाद समझ में आ गया होगा कि किस तरह से changes है Hadoop 1, 2 and 3 में. Yesterday we saw the changes between Hadoop 1 and 2, and now we are going to see the changes between Hadoop 2 and 3. Now, if you want, we can also do certain things on this HDFS. We can make directory, user directory and everything. करके देख लेते हैं. 2-3 कमांड्स मैंने स्क्रिप्ट में डाल रखे हैं. आई विल बी पुटिंग अप दिस स्क्रिप्ट ऑन एलएमएस और आप वहां से ले लेना. ठीक है. ठीक है. Keep an eye on the screen. कॉपी करो इसको. सीडी करके जाओ हडूप में और ये पाथ पेस्ट कर दो. फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर मेकिंग अ डायरेक्टरी user. कम बैक. दिख रहा है आपको? बन गई आपकी डायरेक्टरी डी से स्टार्ट होने वाली. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट वन. Go to your script. Now we are going to make another directory, CloudAge. यूजर के अंदर CloudAge बनाया हमने. There you go. And now the next one. इसके अंदर हम एक इनपुट बना रहे हैं. प्रॉम्प्ट वापस आ गया, मतलब हमारा कमांड सक्सेसफुली रन हो गया है. ओके, देखो इनपुट नजर आ रहा है आपको? Okay, so that was all about this session. I guess in these 2 days, we learned about Hadoop 1, the journey of Hadoop 1 to Hadoop 2, and from Hadoop 2 to Hadoop 3. देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, आपका capacity scheduler है Hadoop 3 में by default. Didn't I tell you? थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लोर करो, ये स्क्रिप्ट रन करो, आपको जो वेब यूआई दिखेगा उसको आप अच्छे से एक्सप्लोर करना. वो आपको बता रहा है कि आपकी मेमोरी कितनी है, कितने कोर्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन सी देयर, राइट? You can just go here and explore the cluster. And I hope it was informative, and I hope you all enjoyed the session. I won't take too much of your time. Have a wonderful Sunday, guys. Take care. Bye bye.